Akshayji, Dr. Saab, thank you very much for speaking with us. Thank you very much for calling us. I had a different set of questions before I came. लेकिन कल रात को when KK passed away, and there was this outpouring of grief because a young artist passing away, it just causes kind of a shock. And you've been in the industry for so many decades. He was also part of your industry, a young singer, has been associated. He was part of my career. He was part of my lots of songs. एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था. इट वाज बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग द क्लाइमैक्स वाज साउंडिंग सो गुड, बिकॉज वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था. तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we are losing them, and it happened in a very young age. And Akshayji, we still don't know the reason for his passing away, but increasingly people are talking about a work-life balance and how in the entertainment industry the pressures are so much that people don't have time for family, don't have time for oneself, don't have time to de-stress. What do you have to say about this? Because you have spoken about it. Lots of things has got to do with जैसे आप बोल रहे हैं de-stressing हो, lots of things have got to do with balancing. और कुछ केसेस तो ऐसे हैं मैं जानता हूँ जो कि लॉन्ग कोविड से भी रिलेटेड है. एंड सो आई वुड जस्ट से कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ काम, वी हैव टू नॉट पैनिक, एंड द बैलेंस ऑफ वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल क्वाइट अ लॉट, एंड वी हैव टू सेटल आवरसेल्व्स and keep ourselves, our mind, and the way we जो भागम दौड़ी है उसको थोड़ी सी, उसका जो स्पीड है वो थोड़ी कम करनी चाहिए कुछ सालों तक के लिए, जब तक we come out of this whole pandemic which is going on. You had COVID abhi recently. Yes. You couldn't take part in the India Pavilion in Cannes. Yeah. आपने इसके बारे में भी कहा that it was a loss for you. Yeah, I couldn't go. But that was the first time in my life I got an invitation to go to Cannes. And I don't believe that. Really? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया. आपको नहीं बुलाया? कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं. नहीं हो सकता है, कोई ऐसी फिल्में मैंने नहीं की हो जो कांस तक जा सके. अच्छा. तो नहीं बुलाया, इसमें शर्म की क्या बात है. So do you feel that Indian film industry has like really arrived in the global scene जो अब Indian films को लेकर special? I am sure, and all thanks to our Prime Minister who has taken us so big and so in such a huge way internationally. So and things are changing for our country. Well, that's it. Akshayji, while researching for this interview, I saw a number of your video interviews which you have done. आप एक खासियत है आपके इंटरव्यूज में that it feels like you straight from the heart that you speak. Very दिल से बोलने वाले आदमी हैं. How come that you in this industry जहाँ पे इतना gloss, glamour सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी you are very जमीन से जुड़े हुए? देखिए, मेरे को बहुत पहले मतलब किसी ने एक बात सिखाई थी कि जब भी इंटरव्यू करो या किसी से बात करो, just be yourself. जो नहीं आती, जिस बात के बारे में नहीं पता, जो कभी कभी कोई इंग्लिश में ज़्यादा बात करने की मुझे कहता है तो ज़्यादा इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती. So I just be myself. The idea behind this is just be yourself, and that's it. तो हो सकता है because just being yourself comes from your heart, and that comes out. That is all it is. Is that what you did जब आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया? बिल्कुल दिल से आपने सवाल पूछे? हाँ, दिल से ही पूछा. मतलब मैं अपने जो मुझे जानना मैं जो एज अ कॉमन मैन, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री
घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं, आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फर्क रह जाता। मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया वो क्या किया। इट ऑल लुक्स फेक इफ आई वुड डू दैट। I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें एक दो चुटकुले सुनाए मैंने बस, और क्या, खत्म हो गई। Were you surprised at all that you were given this opportunity? क्योंकि it's not common कि एक पूरा sit down interview एक film actor जो है प्रधानमंत्री से पूछे। I was taken aback and I didn't know that I would get a chance to do that, and I was honored कि जाके मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ बातचीत कर सकूं। I was a little bit nervous, but then after I started talking to him, he made me not feel nervous at all, and उसके बाद everything just flowing. I was just enjoying myself. Do you think that it's also because you could vibe with him or whatever, because he's also somebody who's an outsider? आप भी एक किस्म से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर ही थे ना, आपका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था. You just came from nowhere, and he's also the same way. I think the best part about our Prime Minister is he knows how to mold himself. He's a very, if he's talking to me, he'll mold himself towards me. If he's talking to him, he'll mold himself. If he's talking to children, he will be according to their age and this, how it should. So I think the ability to mold himself is a great thing in him. Is that something that you also did in the film industry? You've kept on changing the kind of roles that you have done. You didn't typecast yourself कि मैं action hero हूँ. Well, when I मतलब जब मैं आया था इंडस्ट्री में तो मैं एक एक्शन हीरो के आया था. मुझे मतलब सिवाय एक्शन के कोई कुछ और रोल देता भी नहीं था, और इसलिए भी नहीं देता था क्योंकि मैं एक्शन के सिवा ज़्यादा जानता भी नहीं था. तो मैं एक्शन ही करता था. मैं और फिल्में करना चाहता था लेकिन मुझे कोई देता नहीं था. फिर थोड़ा आगे जाके मुझे कभी प्रियदर्शन साहब ने एक कॉमेडी फिल्म दी, हेरा फेरी. फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, फिर मैंने जानवर की. फिर एक वक्त आया जब मेरे पास थोड़े पैसे हो गए और मुझे ना मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की और मैंने उसमें पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू की. फिर मैंने ऐसी टॉयलेट एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट, केसरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे मैंने करीबन 32 फिल्में बनाई हुई हैं. सोशली रेलेवेंट, सोशली रेलेवेंट जो फिल्में एक्चुअली में मैं करना चाहता था. okay. लेकिन कभी मौका नहीं मिला. तो वो करने में 20 साल लग गए आपको इंडस्ट्री में. तो पैसे कमाने में भी तो वक्त लगता है. ऐसे थोड़ी आ जाता है पैसा जाके. मैंने जब काम शुरू किया था अपनी जिंदगी में तो मुझे पहली फिल्म के 51,000 मिले थे पूरी फिल्म के. करीबन 10 साल तक मेरी रेम्यूनरेशन 8 या 9 लाख से ऊपर नहीं गई थी पर फिल्म के. फिर आगे जाके बढ़ती गई. जब पहली बार 1 करोड़ रुपए की एक फिल्म साइन की थी, ओहो हो, मतलब आत्मा प्रसन्न हो गई थी. क्योंकि द रीजन आई एम सेइंग 20 साल लग गए, मैं इसलिए कह रही हूँ, नॉट बिकॉज इट्स अ क्रिटिसिज्म, बट मैं ये कह रही हूँ दैट ऐसी फिल्में बनाने के लिए कोई पैसे नहीं डालना चाहता. डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं, आपकी फिल्म, आपने भी कहा है कि फिल्म बनाने के लिए 10 साल 15 साल आप, नो प्रोड्यूसर वाज रेडी. ऐसे क्यों होता है? One of the reason is that making historical film जी it is very expensive in the terms that for even putting up the sets, that is the additional budget that you put on to your budget. Also number of days of the shoot, also the preparation. For example, in normal shooting आप 9 बजे अपनी shooting शुरू कर सकते हैं. For a period drama or a costume drama or a history, the entire team has to begin at 3 o'clock. वो तो 4 बजे उठ जाते हैं. ये अकेले हैं, entire team. So there I have worked with the actors. ये 7 बजे कहते हैं तो 7 बजे डॉट रेडी मिलते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो 7 बजे कहते हैं और 2 बजे तक नहीं पहुंचते हैं. तो इन सबको लेकर, इस पूरे मेले को लेकर साथ में चलना बहुत मुश्किल होता है. और दूसरी एक बात ये भी थी कि अभी तक ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा में जी हिस्टोरिकल्स को हमारे ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया. जबकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि
भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र से शुरू होती है। या हमने शुरू की आज़ादी के बाद के दशक में हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल्स बनाए। फिर अचानक क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा सिनेमा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंडियन नहीं था, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता धीरे धीरे बैक सीट पर जाती रही। और मैं कई बार कहता था कि मैं, आपको जान के स्मृति हैरानी होगी कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, और उसका एक सीधा सा रीज़न है कि मैं उन सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए वो एक बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें भारत कहाँ है। तो इस तरह की फिल्मों को पहले ले जाकर लोगों को विश्वास दिलाना कि लोग इसे देखेंगे। तो जितनी बार मैं लोगों के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब कोई मॉडर्न लव स्टोरी ले आइए, और मेरे लिए चुनौती थी कि मॉडर्न लव स्टोरी तो 99% बना रहे हैं, मैं आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान और जीवन दिया है। इस सभ्यता और संस्कृति की कहानी 5000 सालों की है, तो हम उसको कब दर्शकों के सामने ले जाएंगे। आपने जो फिल्म बनाई है इसके जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ अमर चित्र कथा, चंदा मामा ऐसी किताबों से या फिर सुनी सुनाई बात। मैं अक्षय जी से शूट से पहले बात कर रही थी, तो हमारा जो व्यू था कि कैसे दिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑफ कोर्स इट्स अ काल्पनिक है, बिकॉज जिन्होंने भी स्केच किया उसके हिसाब से ही वाज लाइक राउंड फिगर्ड, शॉर्ट, गोल चेहरा, और अक्षय जी का पूरा चिजल्ड है, पतले है। तो आपने अक्षय जी को कैसे चूज किया? ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं, लेकिन भारत के टेलीविजन के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहां नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली, और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूं कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए तो किस पर चले हैं, उसी रास्ते पर चलो। महाजनों येन गतः स पंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले। तो कई बार मैं कहता हूं कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए, पृथ्वीराज के शौर्य को देखिए, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए, तब जाके आपको एक चरित्र दिखेगा। मैं एक चरित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चरित्र का कोई भी चित्र हो सकता है, आज इन्होंने किया है, कल कोई दूसरा करेगा, हो सकता है कोई बहुत ही जिसको हम कहते हैं। तो Akshay ji, were you overwhelmed when this offer came to you? Because what Dr. Saab is saying is that इतने सारे facets हैं to पृथ्वीराज चौहान. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such? So did you feel कि आप
you know, were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन, एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा, मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो। तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं। और मैं फिर, लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब, ये सब सही है ना, ये काल्पनिक तो नहीं है ना, यू आर नॉट मेकिंग इट अप। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया ये, एंड आई वाज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया। So you're completely a director's baby, a writer's baby, है ना? Some movies you have to अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। I have to give up myself and completely go with what his belief is. What was the biggest challenge in essaying this role? Oh, there was no challenge. अच्छा. There was no challenge. I could easily say there was a very lot of challenge. I really worked hard and all, but there was no challenge because all my challenges he took it on his chest. And he was taking it and he was driving the whole thing. क्योंकि a period film बनाने में सालों साल लग जाते हैं. I'm not talking about the research. Research अलग बात होती है, but even putting it into action, sets बनाना, उसे फिर अंजाम देना. 42 दिन में इन्होंने मेरे साथ काम कैसे? ये टॉम क्रूज वाली बात हो गई फिर. हाँ, बिल्कुल। वो मुझे कई बार लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। सिमिलरली यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस which is thorough professional, and the team they had given me, they were all brilliant. My all assistants were ready to be the directors. So they were बम्बई में ही 36 सेट लगाए, 36 सेट. There was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियां 500 किस्म की पगड़ियां हैं. 523 एक पगड़ी आप देख सकते हो. विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए. अब उनके ओहदे के हिसाब से पगड़ियां हैं. Okay, so authenticity is very important in one of these the key element. Okay, आप कह रहे थे ये काल्पनिक तो नहीं है, historical है. Now all the problems with our period films have been that इसमें artistic liberty ली जाती है, you know, and then there's criticism. चाहे जोधा अकबर क्या हो, you know, I know that like when I went to Pakistan, I went to the Lahore fort and वहाँ पे लोग कहते हैं there was no queen called जोधा. ये तो आप हिंदू हैं जो आपने कंकॉक्ट किया हुआ है कि जोधा तो कोई थी ही नहीं. तो सिमिलरली do you think that this film will also, you know how it is, right? India is being criticized these days that religious polarization बहुत हो चुकी है, revival of this Hindu nationalism is happening, और आप फिल्म बना रहे हैं on the Hindu Samrat. So do you expect a lot of blowback coming your way that this is imaginary, not real? हाँ जी, दोनों से पूछ रही हूँ. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी चुनौती है, इसलिए कि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतिहास में there are so many different views in history, and since there are different views that makes it more interesting. इसलिए जो भी हम लोगों ने फिल्म बनाई है उसमें उन सारे व्यूज़ का
ध्यान रखा है कि व्हाट आर द पॉपुलर व्यूज, व्हाट इज द पॉपुलर फोकलोर, सो वी हैव टू incorporate that. What I have kept in mind that I should not do something which is contradictory to history. So nowhere in the film or till date I have never made anything which is against history. Wherever history is silent, that is the space I choose to elaborate or to use my imagination. So in my submission is that I have never done anything which is contradictory to what has been proven. What has been proven. और दूसरी बात, क्रिएटिव लिबर्टी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि ये बहुत ही सुंदर कहानी है। अच्छा। और इस पर एक महाकवि जिसका नाम चंद बरदाई है, उसने एक महाकाव्य लिखा है जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह जैसे लोगों ने भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत काम किया है, हम उसको दर्शक तक नहीं ले जा पाए। एंड आई ऑलवेज से controversy is welcome, because that space, controversy is welcome, that will give space for debate. हमने सारे समस्याओं का वाद, I think I believe in the debate as well. डिबेट तो होगा ना। आप पहले सोमनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं और फिर सम्राट। नहीं, ये जब मैं गया हूँ, यहाँ गया हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ, जब मैं गया हूँ, it is related to सम्राट पृथ्वीराज। It is Kashi is related to Samrat Prithviraj Chauhan. It is not just ऐसे मैं चला गया था. And I have not gone for religious reason. I've gone for the cultural thing. I've gone for to tell people that this is our culture and why it is essential. मैं कहा हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि it is because I believe in because he explained me why Samrat Prithviraj Chauhan and Kashi and Somnath is joined relevant to each to other. Indian history. Okay. So it is nothing got I have gone there and I have paid my respect. I have not gone there to ask कि मेरी फिल्म चला देना। पर वो भी मांगने में कोई नहीं आपत्ति नहीं। स्मिता, हम लोग बड़े स्पष्ट थे जी, क्योंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू नेशनलिज्म, मैं उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहता हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन इज हिंदू, एंड व्हेन आई से हिंदू इट मीन्स कल्चर। हैविंग सेड दिस, व्हाई डिड वी गो टू सोमनाथ और वाराणसी? Now as we know that the cultural capital or the spiritual capital of India is Varanasi. So इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा, और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है। गंगा ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम सब की भावना है कि ये वो धारा बहती आ रही है जिसने इस इतिहास को देखा है। और मैं, चूँकि इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और हमारी फिल्म में भी है, तो एक रिलेशन वो भी था। दूसरा, सोमनाथ गए, सोमनाथ का भी रेफरेंस हमारी फिल्म में आता है, आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आज शाम को देखिए, आज देखें। और सोमनाथ को कई बार तोड़ा गया, और इस देश के सामने ये प्रश्न था कि जिसका ध्वंस कर दिया गया उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, मेनन साहब, इन सब ने मिलकर तय किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेहरू जी इसके विरोध में थे, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था, ऊर्जा का केंद्र भगवान सोमनाथ हैं। और सिर्फ भगवान सोमनाथ मतलब ये हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है। भारत जो लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों से, 1192 के बाद मैं कहता हूँ कि जो गुलाम रहा, जिस पे कई प्रकार के अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, सब कुछ इस समाज ने सहा। आज आज़ाद देश में हमारे पास एक अवसर है कि हम उस संस्कृति का घोष वापस करें, और उसका प्रतीक बना भगवान सोमनाथ का मंदिर, जिसे 1948 से शुरू किया गया। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, सेंटर ऑफ आवर कल्चर। अक्षय जी, you were seen as this
icon in Mata Vaishno Devi temple. You used to go there very often. And you used to go to many temples also. आप सब जानते हैं कि you were one of those who was visiting temples much before it became fashionable, I should say, for people to go just before a film release. You used to go even otherwise. फिर आपने कहा that you saw a lot of waste happening in temples. चढ़ावा चढ़ाते टाइम. मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सोमनाथ मंदिर भी गया जी. मैंने जो दूध उधर चढ़ाना था मैंने उधर नहीं, मैं आई हैव गिवन इट टू द ट्रस्ट एंड टोल्ड देम टू गिव इट टू द नीडी आउटसाइड, बिकॉज दैट किसी के काम आएगा. चाहे वो तेल हो, चाहे वो दूध हो, वो किसी के घर में जाएगा, किसी के पेट में जाएगा. वहां इतने सारे लोग थे जो हु नीड्स दैट. तो हमारे जो प्रैक्टिसेस एंड whatever I have said, I have still see, I'm not saying कि आप भी करिए. ठीक. मैं जो कर रहा हूं, मैंने, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया. मैं कल गया हुआ था, वहां जाके जितना भी दूध चढ़ाना था मैंने दे दिया. मैंने बोला आप किसी के घर पे दे देना, कुछ लोगों को दे देना, तेल जो भी चढ़ाना था दे देना, बस. तो हमारे कई विचारधाराएं हैं. हम मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं और हमारे यहाँ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार के. स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो और वो भी संप्रदाय है जिसको हम लोग बिल्कुल मानते हैं. तो भारत की सबसे बड़ी जो मैं विशेषता कहता हूँ कि आप मंदिर जाएं न भी जाएं तो इससे अंतर नहीं पड़ता है, परंतु विविधता विचारों की ये जिंदा रहनी चाहिए, यही भारत है. Akshay ji, I'm going to ask you again about issues that you have raised in your films. Besides this film, you've come out with several films which are socially relevant, whether it was about sanitary napkins, whether it was about toilets being made. What is it that motivated you to move away from doing just pure entertainment to socially relevant? Because, ma'am, I got bored. Okay. I got bored of it. Yes, but I still do sometimes a house full, because then I get bored of that. So I have to come back. Okay. So and God has been kind that I got this whole thing that I can make my own films. I can make Mission Mangal. I can make, I mean, कितने लोगों ने मुझे कहा आखिर साइंस के ऊपर फिल्म बना रहा है तू, रॉकेट पे. अच्छा तू बता, तेरे ड्राइवर को ऑर्बिट के बारे में पता है? तू उससे पूछ ले. एंड ही वाज आस्क्ड ऑर्बिट, ही सेड नहीं. मैं बोला अगर उसको नहीं पता है तो मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहूंगा कि वो जब देखेगा उसको समझ में आएगा, अच्छा ऑर्बिट मतलब ये. फायदा क्या होता है फिल्म बनाने का कि एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर आप उसको समझा गए ना तो आपकी फिल्म सही है. शौचालय पे भी मैंने जब फिल्म बनाई थी तो मैं चाहता था कि हर एक इंसान समझ सके कि औरत के लिए शौचालय कितना जरूरी है. तो इसमें how much is your own awakening in this, and how much is it also your wife, because she writes so much about socially relevant issues. Does she discuss this with you and say कि आप क्यों नहीं ऐसे So like a pad man. When she told me about, देखिए मेरी नॉलेज, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उतना ही हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों से मिलके. मेरी वाइफ ने मुझे सैनिटरी पैड के बारे में बताया, उसके वो इंसान के बारे में बताया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने बताया. तो ऐसे क्या होता है जिंदगी में. फिर जो मिशन मंगल है, जो उसका डायरेक्टर है, उसकी जो सिस्टर है, शी इज अ साइंटिस्ट, उसने मुझे मिशन मंगल के बारे में बताया. फिर मुझे कोई इंसान मिले जिन्होंने बताया एयरलिफ्ट के बारे में, जिन्होंने बताया कि 1,70,000 लोग फंसे थे. तो ऐसा होता है कि मैं अपना माइंड क्लीन लेके चला हूं, एक साफ पेपर. लोग मिल जाते हैं, ये भरते हैं, टक 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 टक, फिर रजिस्टर होना शुरू होता है. आज अगर मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछोगे तो मुझे बहुत पता है, लेकिन इनकी वजह से. और यही नॉलेज मैं एक फिल्म के दौरान लोगों को देना चाहता हूं जो जो, जो, जो उनको पता है
इसके See, बारे में। the thing is that even Karan Johar said you're like a one-man industry. Why? Because you came from outside with no backing at all, and the fact that you can make movies that you want to make, that's something that is quite phenomenal, isn't it? Don't you think that? बिकॉज मेरे पास अब पैसे हैं, मैं बना सकता हूँ, वरना नहीं बना सकता। वरना अगर मैं किसी को कहूँ कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाए क्या, आपको पता वो फिल्म जो है जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, वो 5 साल से घूम रहा था इंडस्ट्री के अंदर और बड़े बड़े हीरो को उसने बताई ये फिल्म, लेकिन वो लोग क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा, are you mad? Who wants to make a movie on toilet ek prem katha? And actually they were thinking, I say, who wants to talk about sanitary pads? Why would you make a film on that? Who wants to do a film on science? Who So cares? that you don't get scared that in this the film could flop, it could be a failure, and you could have made a mistake in picking up these themes. Yeah, the scare is that, see, I कि can, Friday to Friday होता है ना success. ma'am, I can easily make a Rowdy Rathod 2 or a Sing is King 2 and earn about 4 times more than what I earn in these films. But the plan is not about earning. The plan is about doing something where the society can understand about our field, our people. These are our great heroes. The sanitary pad guy, he is a great hero. Mrs. Samrat Prithviraj is a great hero. I am getting an opportunity in one lifetime to play some different kind of roles, and I can achieve so much. I can consider myself one of the most luckiest person that इतने सारे किरदार मिलते हैं मुझे खेलने के लिए। अभी तो इन्होंने साहब ने मेरे साथ राम सेतु भी लिखी है। He is my creative director, my creative producer in it. You have to see that film. I didn't even know about Ram Setu, क्या मतलब about the bridge. And Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have it. a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पता है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home that why aren't you doing Akbar, why aren't you doing Tipu Sultan, why are you doing this film, Prithviraj ke upar? See, I will tell you, like my son, he knows about British Empire. He knows about Mughals because he studied, but he didn't know about Samrat Prithviraj Chauhan. He asked me, who's he? I know, पोस्टस्क्रिप्ट होता है और 10th बोर्ड एग्जाम में जो नॉन मुगल रूलर्स हैं उनके ऊपर चॉइस क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का होता है या 2 मार्क का होता है और वो चॉइस क्वेश्चन में होता है। तो बच्चे ऑब्वियसली चॉइस क्वेश्चन को कहाँ पढ़ेंगे? दे विड रादर रीड की जो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा आप हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम पे हो जाए या अकबर के जजिया टैक्स के ऊपर हो जाए या किसी मनसबदारी सिस्टम पे हो जाए, लेकिन हम पृथ्वीराज के ऊपर नहीं जाए। There is a whole paragraph on Akbar's policies, but there is no policy, there is no line about him. और बट हिस्टोरिकली भी तो किसी ने लिखा नहीं ना, इट्स ओनली कविताओं के ऊपर बेस्ड है। कारण है कि आपकी फिल्म भी कविता के ऊपर बेस्ड है ना। मैं उसका एक कारण देता हूँ कि 1947 के बाद जिन लोगों के जिम्मे भारत का इतिहास लिखना आया, उन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिवली भारत के गौरवशाली इतिहास को बाहर किया और हमको ये सिखाया कि हम सभ्य नहीं थे। हमारे पास सभ्यता के विकास के कोई ऐसे, चाहे वो, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब तक हड़प्पा का एक्सकवेशन नहीं हुआ था तब तक लोग यही मानते थे कि हम लकड़ी के घर बनाते हैं। जब हड़प्पा का एक्सकवेशन हुआ तो पता चला हम ईंटों के भी घर बनाना जानते थे और हम जब धोलावीरा बना सकते हैं। और जब धोलावीरा का एक्सकवेशन हुआ तो उसमें एक और सरप्राइज था
कि अरे पत्थरों में भी काम करना जानते हैं। तो अधिकतर जिन लोगों को इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी उनका शायद भारत के प्रति बहुत प्रेम नहीं था। इसलिए जैसे 5000 सालों के इतिहास में से आप 300 वर्ष का इतिहास पढ़ाते हैं, बाकी का कहाँ चला गया? अनुपात भी अगर आप देखें, बाकी का कहाँ चला गया? चाणक्य को एक पुस्तक है जिसमें लिखा जाता है कि he was a Brahmin fox. Where is the necessity of mentioning his varna and Brahmin fox? The person who has written अर्थशास्त्र, जो दुनिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन पर श्रेष्ठ किताब मानी जाती है। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो भारत का स्वाभिमान है, उसके लिए कोई कहता है कि वो तो पहाड़ी चूहा है और आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि वो पहाड़ी चूहा है। महाराणा प्रताप के बारे में जब भी बात करते हैं तो आप इस बात को भुला देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अकबर का विरोध करें। अकबर को महान कहने वाला व्यक्ति कौन है? मैं कई बार लोगों से कहता हूँ तो विंसेंट स्मिथ है। उसने एक नैरेटिव गढ़ा, उसने एक लिखा और वो नैरेटिव लोगों ने लैप कर लिया। लेकिन अगर आप राणा का त्याग देखें तो वो बहुत बड़ा है। आप राणा प्रताप यू वांट टू प्ले नेक्स्ट? वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोई if somebody comes up with somebody comes, God knows। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कुछ पता you नहीं believe क्या a है। lot in fate, right? Obviously You do. I do, absolutely I believe in it because it's आप चलते चलते आपकी मुलाकात कुछ लोगों से हो जाती है एंड ये तो एक मुलाकात थी। हाँ। मैं नाम इन्होंने कभी मुझे बुलाया ना मैंने इन्हों को, ये मुलाकात थी। इन्होंने आदि चोपड़ा जी से बात की और आदि चोपड़ा ने पूछा कौन, तो इन्होंने कहा ये, और फिर मुझे बुलाया गया और फिर मिला गया। आप भी life has taken you know into many spheres. आप दिल्ली के हैं, आप बम्बई चले गए and you keep coming back to Delhi. What is it about coming to Delhi? What is the one thing about Delhi that you'll never you'll never forget and you miss it a lot when you're not here? मेरा घर है यहाँ, आई एम अ डेलीआइट, मेरी पैदाइश यहाँ की है। सब जानते हैं सिवाय गूगल के। गूगल अभी भी लिखता है अमृतसर में पैदा हुआ हूँ। कैन यू बिलीव? हाँ, गूगल में अभी भी लिखा हुआ है। अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, वो फिर भी लिखते हैं। नहीं, पर अगर मैं आंखें बंद कर लूं, मुझे ना पता हो कि अक्षय कुमार सामने बैठे हैं एंड सिर्फ मैं सुनूं वो क्या कह रहे हैं, ही लुक्स लाइक पिंड दा मुंडा। You are so Punjabi, so that's why. क्या करूं? अभी भी मैं कभी बराबर घंटी नहीं बोल सकता हूँ, कैंटी बोलता हूँ। तो फिर किसकी गलती है कि अगर गूगल की गलती तो नहीं है ना फिर? हाँ? गूगल की गलती क्यों? पंजाबी यहाँ नहीं बसते? हाँ, okay. So Delhi is पंजाबी Punjab. सिर्फ पंजाब में ही बसते हैं। Yeah, okay. So I want to just before we end, I want to come back to the thing about mental health, and you have kept yourself physically very active and you keep speaking about how everybody should be should involve keep that balance between family life and work life. Can you speak to the youth and tell us why it is important to keep that balance in today's day and age? I'm speaking more because after COVID the stress, economic stress is so much on families and on youngsters. So could you tell us how it's so imperative to keep that going in life? It is very important that you keep a balance of your life and अभी मैं थोड़े दिन पहले एक गांव में शूटिंग कर रहा था एंड मैं जाके मुझे आदत है कि मैं उनके साथ बैठ के एक गांव में किसी के घर चला गया, एक फार्मर था, उनके घर में चला गया और जाके उसके साथ बैठ के मैं चाय पी रहा था और मैं देख रहा था, उसका घर देख रहा था। बहुत ऐसी छोटी सी झोपड़ी थी उनका, लेकिन इतनी खुशी थी उनके घर में, इतनी खुशी थी, मैं आपको सच बताता हूँ, इतनी खुशी तो मेरे घर पे भी नहीं होती, जबकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर में खुशी है लेकिन उनके घर में ज्यादा खुशी थी। वो पता नहीं कहाँ से लाए वो लोग। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं आके उनके वहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ। मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था, उनके साथ बैठ के आराम से बातें कर रहा था, क्योंकि कोई इस बात का स्ट्रेस नहीं है।
सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, बच्चे बाजू में ही पाठशाला है वहाँ चले जाते हैं, और एक बैलेंस रखा हुआ है। पिताजी घर पे आ जाते हैं शाम को काम करने के बाद, एंड उसके बाद अपने घर पे भी बच्चों के साथ, और फिर रात को एक पिताजी वो बता रहे थे कि मैं सोने के लिए मराठी में बता रहे थे, मम्मी रामायण सांगतो, मुझे रामायण की कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, और उन लोग सो जाते हैं। और कई बार तो मैं इतना थका होता हूँ, मैं रामायण कहानी सुनाते सुनाते मैं सो जाता हूँ, वो लोग फिर भी जागे रहते हैं। तो मैं देख रहा था कि एक लाइफ का बैलेंस उन्होंने काम, एजुकेशन, खाना पीना, ये सब कुछ बना के रखा हुआ है, एंड दिस इज अ थिंग टू लर्न from them. To go back why to the why roots. to go to back to your basics. We are not in our basics. A journalist, lot of journalists ask me, why do you sleep early? Why shouldn't I sleep early? I should sleep early because when I was a child, my mom and dad used to tell me, बेटा 9:30 बज गए बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ. We changed it. We have been dirty. That we have started sleeping at 12:30 and thinking 1 o'clock, that it is so cool. We made stress to our body. Oh, you get up at 4 o'clock. What is wrong with you? Somebody says. Why not shouldn't I get up at 4 o'clock? Which Bombay actor gets up at 4 o'clock? I don't want to talk about who gets up or who doesn't. But why shouldn't I get up at 4:30? Yeah. Isn't that supposed to be Good. Because you don't, one thing about you, you don't do what everybody does, huh? So I want to ask you, what is your identity? आप दिल्ली वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं, कनाडा वाले हैं, कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली वाला हूँ. दिल्ली वाले. Yeah, I'm a Delhiite. Okay. Because there's always this thing कि कहाँ के हैं ये? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ और प्योर हिंदुस्तानी हूँ, and I live my life the exact way what I was in my childhood. And I have to ask you another question because your wife writes a column every week and she's so popular with her column. You are this really Prinida Munda and she is ultra sophisticated, born into two very famous people. How does the connect work? How does that marriage work? It works very weirdly. It works very weirdly. I have no idea. But she thinks there, I think there. But you input into each other's creativity. If asked. Okay. Not, why did you do it? No. Huh. If asked, then she will give me a suggestion. If asked, she says, read my column, I would read it. What do you think? I would say this is not a good thing. If not asked, keep myself aside. So you are these two entities who have kept your personalities the way you were. Yeah, I don't interfere with her life, she doesn't interfere with mine. Right. You faced a number of challenges when you came into the industry. She probably didn't, but she said goodbye at one point of time कि मैंने नहीं करना ये. Because she knew that she's not good. How many actors and actresses who are dynasts accept that they are not good? They don't. They don't feel. She left because she just decided मैंने नहीं करना. Yeah, because she said my mold was not made for it. Just because my mom and dad are from the industry doesn't mean that I should also be in the industry and score here. Actually, your children will not have to face the same problems which you probably did if they were to enter the industry. They don't have to change their names, for example. You did. Change my name? I changed my name Akshay. From Rajiv to Akshay. Yeah. I changed it ऐसे ही. अच्छा. ना किसी पंडित ने नहीं बोला. हाँ. मैंने एक्चुअली, चले मैं आपको बताता हूँ मैंने अपना नाम क्यों बदला. मैंने एक फिल्म में ना एक छोटा सा रोल किया था, एग्जैक्टली 8 सेकंड का, जिसमें मैं हीरोइन को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ. एज ए टीचर आया था, ये थोड़ा बहुत गिरा. 8 सेकंड. महेश भट्ट ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी. उस फिल्म का नाम था आज. उसमें हीरो जो थे उनका नाम था कुमार गौरव. और फिर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये मेरी पहली फिल्म है, मुझे फिल्मों में आना है. तो मुझे पता चला कि यार कुमार गौरव का नाम अक्षय है.
तो यार मैं अपना नाम बदल लेता हूँ. And now are you going to take the name Samrat? नहीं, I don't want anything No? like that. No. Okay. Thank you so much for Thank you. speaking with Thank us, you Akshay very ji. much. Thank you, Dr. Saab. Thank you Thank you very very much. much.